تنقید اور جدید تنقیدی نظریات. میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. ترقی پسند تنقید، اصول و مبادی. منشی پریم چند اردو کے نامور سماجی حقیقت نگار، افسانہ نگار اور ناول نگار. انہوں نے ترقی پسند تحریک کا جب آغاز ہوا تو انہوں نے ادب کی غرض و غایت کے زیر عنوان اپنی ایک تحریر پیش کی تھی، اور وہ تحریر انجمن ترقی اردو کے پہلے منعقدہ جلسہ 1936 میں پیش کی تھی. منشی پریم چند نے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تحریر، جس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: حضرات، یہ جلسہ ہماری ادب کی تاریخ میں ایک یادگار واقعہ ہے. ہمارے سمیلنوں اور انجمنوں میں اب تک عام طور پر زبان اور اس کی اشاعت سے بحث کی جاتی رہی ہے، یہاں تک کہ اردو اور ہندی کا ابتدائی لٹریچر جو موجود ہے اس کا منشا خیالات اور جذبات پر اثر ڈالنا نہیں بلکہ محض زبان کی تعمیر تھا. وہ بھی نہایت ہی اہم کام تھا. جب تک زبان کے ایک مستقل صورت اختیار نہ کر لے، اس میں خیالات اور جذبات ادا کرنے کی طاقت کہاں سے آئے؟ ہماری زبان کے پائنیئروں نے ہندوستانی زبان کی تعمیر کر کے قوم پر جو احسان کیا ہے، اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار نہ ہوں تو یہ ہماری احسان فراموشی ہوگی. لیکن زبان ذریعہ ہے، منزل نہیں. اب ہماری زبان نے وہ حیثیت اختیار کر لی ہے کہ ہم زبان سے گزر کر اس کے معنی کی طرف بھی متوجہ ہوں اور اس پر غور کریں کہ جس منشا سے یہ تعمیر شروع کی گئی تھی وہ کیوں کر پورا ہو. اب کیا ہے کہ منشی پریم چند بنیادی طور پر مضامین کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں علم بیان و بدیع سے نکلنا چاہیے. ہمیں تشبیہات، استعارات، کنایا، مجاز مرسل، اور اگر ہم شاعری کی بات کریں تو شاعری میں ہمیں اوزان و بحور سے نکلنا ہوگا، اور ہمیں حیاتوں کے جو کلاسیکی تصورات تھے ان سے بھی نکلنا ہوگا. ہمیں کنٹینٹ پر توجہ صرف کرنا ہوگی، یعنی ہمارا ادعا یہ ہونا چاہیے کہ معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں. ادب وہ تخلیق کیا جائے جو عام لوگوں کے معافی ضمیر کو ایک طرح سے نئی وسعت اور ہماگیری عطا کرنے والا ہو. یعنی زبان کو انہوں نے منزل قرار نہیں دیا، زبان کو ایک وسیلے کے طور پر انہوں نے لیا. وہی زبان جس میں ابتدان باغ و بہار اور بیتال پچیسی کی تصنیف ہی معراج کمال تھی، اب اس قابل ہو گئی ہے کہ علم اور حکمت کے مسائل بھی ادا کرے. یعنی پریم چند چاہتے تھے کہ اردو زبان میں علمی باتیں ہوں، دانائی کی باتیں ہوں، انسانی مسائل کو ادا کیا جائے. اور یہ جلسہ اس حقیقت کا کھلا اعتراف ہے. زبان بول چال کی بھی ہوتی ہے اور تحریر کی بھی. ظاہر ہے کہ زبان کی دو سطحیں ہوتی ہیں، ایک اورل سطح ہوتی ہے اور دوسری تحریر کی سطح ہوتی ہے، یعنی جس سطح پر آ کر کسی بھی زبان کے لکھنے والے لکھتے ہیں. بول چال کی زبان تو میر امن اور للو لال کے زمانے میں بھی موجود تھی، یعنی ان کا اشارہ فورٹ ولیم کالج کی طرف تھا. انہوں نے جس زبان کی داغ بیل ڈالی وہ تحریر کی زبان تھی. میر امن مفرس زبان میں باغ و بہار لکھنے والے داستان گو تھے، اور للو لال نے سنسکرت سے تراجم کیے، اور وہ تراکیب جو فارسی کی تراکیب تھی، وہ تراکیب جو عربی کی تراکیب تھی یا عربی فارسی کی تراکیب تھی، یعنی مفرس و معرب الفاظ کی جگہ اس نے سنسکرت کے الفاظ رکھنا شروع کر دیے. اس طرح للو لال نے تراجم کیے. تو منشی پریم چند نے میر امن اور للو لال دونوں کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہی ادب ہے، وہ تحریر کی زبان تھی اور وہی ادب ہے.
हम बोलचाल से अपने करीब के लोगों से अपने ख्यालात जाहिर करते हैं, अपनी खुशी या रंज के जज्बात का नक्शा खींचते हैं। यानी इंसान जबान की तकल्लुमी सतह पर अपने माफी ज़मीर का इजहार करता है, तो वो क्या है कि अपने जज्बों का इजहार करता है, अपने एहसासात का इजहार करता है, अपनी खुशी का इजहार करता है, अपने दुखों का इजहार करता है, अपने जज्बात का इजहार करता है। जाहिर है कि यह जबान की तकल्लुमी या बोलचाल की सतह होती है। अदीब वही काम तहरीर करता है और वही काम तहरीर से लेता है। हां, उसके सुनने वालों का दायरा बहुत वसी होता है, और अगर उसके बयान में हकीकत और सच्चाई है तो सदियों और कर्नों तक उसकी तहरीरें दिलों पर असर करती रहती हैं। अब समाधी हकीकत निगारी की तरफ प्रेमचंद इशारा करते हैं कि एक लिखने वाले की तहरीर में सच्चाई होनी चाहिए, एक लिखने वाले की तहरीर में हकीकत होनी चाहिए। इस तरह उसकी तहरीर न सिर्फ दिलों पर असर करती है बल्कि वो मुसलसल असर करती रहती है, और ये सफर सदियों और कर्नों तक जारी और सारी रहता है, यानी हजारों साल तक जारी रहता है। प्रेमचंद ने लिखा कि मेरा ये मंशा नहीं कि जो कुछ सिपुर्दे कलम हुदाए वो सब का सब अदब है। अदब उसी तहरीर को कहेंगे जिसमें हकीकत का इजहार हो, जिसकी जबान पुख्ता, शुस्ता और लतीफ हो, और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने की सिफत हो। और अदब में यह सिफत कामिल तौर पर उसी हालत में पैदा होती है जब इसमें जिंदगी की हकीकतें और तजुर्बे बयान किए गए हों। यानी प्रेमचंद बराह रास्त अपने इब्दा की तरफ अब आ चुके हैं, यानी उन्होंने एक तमहीद बांधी और फिर उसके बाद उनका मानना यह है, उनका नुक्ता नजर यह है या उनकी आइडियोलॉजी यह है कि तहरीर वही तहरीर जिंदा रहती है जो जिंदगी की हकीकतों और जिंदगी के तजुर्बात को बयान करने के अनासिर पर मबनी हो। तिलिस्माती हिकायतों या भूत प्रीत के किस्सों या शहजादों के हुस्नों इश्क की दास्तानों से हम किसी जमाने में मुतासिर हुए हों, लेकिन अब उनमें हमारे लिए बहुत कम दिलचस्पी है। अब क्या है कि मिथ की तरफ, अस्तूरा की तरफ, असातीर की तरफ इशारा है प्रेमचंद का कि अब वो जमाना तज चुका जब तिलिस्मी हिकायतों पर मबनी दास्तानें सुनाई जाती थी या लिखी जाती थी, या भूत प्रीत या किस्सों या शहजादों के किस्सों पर मबनी हुस्न इश्क की दास्तानें सुनाई जाती थी। अब जमाना वो जमाना तज चुका है, अब नया जमाना है, नई जिंदगी है, और नई जिंदगी के अपने तकाजे हैं जिसमें अदीब को हकीकत निगारी से काम लेना चाहिए और जिंदगी के हकीकी तजुर्बों को सच्चाई के साथ बयान करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि फितरत इंसानी का माहिर अदीब शहजादों के हुस्नो इश्क और तिलिस्माती हिकायतों में भी जिंदगी की हकीकतें बयान कर सकता है और उनमें हुस्न की तख्लीक कर सकता है, जमालियात की तख्लीक कर सकता है। यानी एक लिखने वाला जो है वो शहजादों के हुस्न इश्क के जरिए, तिलिस्माती हिकायतों के जरिए भी जिंदगी के हकायक को बयान कर सकता है, लेकिन इससे भी उसी हकीकत की तस्दीक होती है कि लिटरेचर में तासीर पैदा करने के लिए जरूरी है कि वो जिंदगी की हकीकतों का आईनादार हो। अगर लिटरेचर जिंदगी की हकीकतों का आईनादार है तो उसमें तासीर भी होगी, वो लोगों के दिलों पर असर भी करेगा और लोगों के जज्बात, लोगों के एहसासात, लोगों के मसाइब व मसाइल को भी अपने अहाता में लेकर आएगा। लेकिन वो जिंदगी की हकीकतों का आईनादार हो, फिर उसे आप जिस पस मंजर में चाहे रख सकते हैं। चिड़िया की हिकायत या गुल बुलबुल की दास्तान भी उसके लिए मौजू साबित हो सकती है। अब क्या है, प्रेमचंद माजी के तिलिस्माती माहौल से, माजी की तिलिस्माती फजा से निकालना चाहते हैं और इंसानों को जमीनी हकाइक की तरफ लेकर आना चाहते हैं। यानी अदीब को ऐसा अदब तख्लीक करना चाहिए या तहरीर करना चाहिए जो जिंदगी की हकीकतों को बयान करने पर कुदरत रखता हो, या जिसमें जिंदगी के हकायक को बयान किया गया हो, या जिसके जरिए जिंदगी की सदाकतों को, जिंदगी के तजुर्बों को, समाजी जिंदगी के तजुर्बों को बयान किया गया हो। अदब की बहुत सी तारीफें की गई हैं, लेकिन
प्रेमचंद के ख्याल में अदब की बेहतरीन तारीफ तनकीद हयात है, यानी वही बात जो मैथ्यू आर्नल्ड ने भी की थी, यही चाहे वो मकालों की शक्ल में हो या अफसानों की या शेर की। यानी जो जिंदगी के बयानिए पर मबनी तख्लीक है वही बेहतरीन अदब है, वही बेहतरीन तनकीद है, उसे हमारी हयात का तबसरा करना चाहिए। यानी अदब ऐसा होना चाहिए कि जो इंसानों की जिंदगी को बयान करने वाला हो। प्रेमचंद ने यह भी लिखा, हम जिस दौर से गुजरे हैं उसे हयात से कोई बहस न थी, यानी माजी की तरफ इशारा है, तिलिस्माती हकीकतों की हकायतों की तरफ इशारा है, भूत प्रीत के किस्सों की तरफ इशारा है, शहजादों के हुस्न इश्क की दास्तानों की तरफ इशारा है, यानी उर्दू के माजी के अदब की तरफ इशारा है। उनका कहना है कि उसको हमारी हयात से कोई बहस न थी। हमारे अदीब तखय्युलात की एक दुनिया बनाकर उसमें मनमाने तिलिस्म बांधा करते थे। कहीं फसाना अजायब की दास्तान थी जो मुफर्रस व मुअर्रब थी, कहीं पोस्तान ख्याल की, और कहीं चंद्र कांता की। उन दास्तानों का मंशा महज दिल बहलाओ था और हमारे जज्बा हैरत की तस्कीन थी। यानी वो जमाना तज चुका जब दास्तानें दिल बहलाने के लिए लिखी जाती थी या जज्बों को न सिर्फ हैरत में मुब्तला करने के लिए बल्कि हैरत पर मुश्तमिल जज्बों की तस्कीन वाली तहरीरों का जमाना तज चुका है। लिटरेचर का जिंदगी से कोई ताल्लुक है इसमें कलाम ही ना था बल्कि वो मुसल्लम था। किस्सा किस्सा है, जिंदगी जिंदगी, दोनों मुतजाद चीजें समझी जाती थीं। शुआरा पर भी इंफरादियत का रंग गालिब था। इश्क का मयार नफस परवरी था और हुस्न का दीदा जेबी। इन्हीं जिनसी जज्बात के इजहार में शुआरा अपनी जिद्दत और जूलानी के मोजज़े दिखाते थे। जाहिर है उर्दू के क्लासिकी दौर में यही कुछ होता था। शेर में किसी नई बंदिश या नई तशबीह या नई परवाज का होना दाद पाने के लिए काफी था, चाहे वो हकीकत से कितनी ही बईद क्यों ना हो। या फिर यास और दर्द की कैफियतें, आशियाना और कफस, यानी वो सारे लवाजिमात जो उर्दू के क्लासिकी दौर में फारसी से उर्दू का हिस्सा बने थे, जहां गुलो बुलबुल के किस्से थे, आशियाना था, कफस था, बर्क और खिरमन के तखय्युल में इस खूबी से दिखाई जाती थी कि सुनने वाले दिल थाम लेते थे। और आज भी वो शायरी किस कदर मकबूल है। बेशक शेर और अदब का मंशा हमारे एहसास की शिद्दत को तेज करना है, लेकिन इंसान की जिंदगी महज जिनसी नहीं है। क्या वो अदब जिसका मौजू जिनसी जज्बात और उनसे पैदा होने वाले दर्द यास तक महदूद हो, या जिसमें दुनिया और दुनिया की मुश्किलात से किनारा कश होना ही जिंदगी का माहसल समझा गया हो, हमारी ज़हनी और जज्बाती जरूरतों को पूरा कर सकता है। जिनसियत इंसान का एक जुज़्व है और जिस अदब का बेशतर हिस्सा जिनसियत से ही मुतल्लिक हो वो उस कौम और उस जमाने के लिए फख्र का बायस नहीं हो सकता और ना उसके सही मजाक ही की शहादत दे सकता है। अब क्या है कि जिनसियत के पहलू को लेकर अगर एक अदीब लिख रहा है तो वो लिखते ही चला जाता है, तो ये एक पहलू है, ये पूरी जिंदगी की हकीकतें नहीं है, या जिंदगी को कुल्लियत या बड़े कैनवस पर जाकर दिखाने का नाम जो है वो नहीं है। ये अदब का सिर्फ एक जुज है, एक पार्ट है। और जाहिर है कि ये कौम के मिजाज की, कौम की मजमूई फजा की एक एलिमेंट तो तर्जुमानी नहीं कर सकता ना। क्या हिंदी और क्या उर्दू शायरी दोनों की एक ही कैफियत है? इस वक्त अदब और शायरी का जो मजाक है और जो माजी में था उसके असर से बेनियाज होना आसान ना था। तहसीन और कदरदानी की हवस तो हर एक को होती है कि मुझे सराहा जाए, मेरी तख्लीक की तारीफ की जाए, मेरी नस्र को तस्लीम किया जाए, मुझे दादो तहसीन से तहसीनी कलिमात से नवाजा जाए। शुआरा के लिए अपना कलाम ही जरिया मुआश था और कलाम की कदरदानी रऊसा और उमरा के सिवा और कौन कर सकता। जाहिर है कि क्लासिकी दौर में
یا بادشاہت کے دور میں شعراء دربار کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے اور قصیدہ کہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کو خلعت، انعام، دستار میسر آتے تھے۔ ہمارے شعراء کو عام زندگی کا سامنا کر کے اور اس کی حقیقتوں سے متاثر ہونے کے لیے یا تو موقع ہی نہ ملا، یا ہر خاص و عام پر ایسی ذہنی پستی چھائی ہوئی تھی کہ ذہنی اور شعوری زندگی رہ ہی نہ گئی تھی۔ یعنی اب پریم چند چاہتے ہیں کہ وہ زمانہ تر چکا جب شاعر دربار کے ساتھ وابستہ تھا، وہ زمانہ تر چکا جب شاعر بادشاہ کا قصیدہ لکھتا تھا اور اسے خلعت، انعام اور رقم ملتی تھی یا اسے جائیداد ملتی تھی۔ اب کیا ہے کہ اب ادیب کو عام لوگوں کی زندگی کو اپنے ادب کا موضوع بنانا ہوگا، ان کی ذہنی اور شعوری جو کیفیت ہے اس کی پرداخت کرنا ہوگی۔ ہم اس وقت کے ادیبوں پر اس کا الزام نہیں رکھ سکتے، ادب اپنے زمانے کا عکس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اردو کے کلاسیکی عہد کے شعراء، اردو کے کلاسیکی عہد کے تخلیق کار اپنے زمانے کے مطابق اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اور پریم چند کا زمانہ پریم چند کے دور کے ادیبوں سے متقاضی تھا کہ وہ عام آدمی کی زندگی کو ادب کا موضوع بنائیں اور عام آدمی کو ادب کے ذریعے شعور دیں کہ ان کے حقوق کو پامال کون کر رہا ہے، ان کا استحصال کون کر رہا ہے، ان کی محنت کے عوض ان کو جو اجرت دی جاتی ہے اس میں ان کی محنت کا استحصال کس قدر ہوتا ہے، اور کس کس سطح پر سوسائٹی کے اندر ایک عام آدمی کا استحصال کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پریم چند کے دور کے تقاضے بدل چکے تھے، جو جذبات اور خیالات لوگوں کے دلوں میں ہلچل پیدا کرتے ہیں وہی ادب میں بھی اپنا سایہ ڈالتے ہیں۔ ایسی پستی کے زمانے میں یا تو لوگ عاشقی کرتے ہیں یا تصوف اور ویراگ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس دور کی شاعری اور ادب دونوں اسی قسم کے ہیں جب ادب پر دنیا کی بے ثباتی غالب ہو اور ایک ایک لفظ یاس اور شکوہ روزگار اور معاشقہ میں ڈوبا ہوا ہو تو سمجھ لیجئے کہ قوم جمود اور انحطاط کا شکار ہو چکی ہے۔ اب یہاں بھی پریم چند کا اشارہ اس عہد کی طرف ہے جسے ہمارا کلاسیکی عہد کہا جاتا ہے یا اردو ادب کا کلاسیکی دور کہا جاتا ہے۔ یعنی جب جو ہے دلی پر حملے ہو رہے تھے اور میر بھی یہ کہہ رہے تھے شہاں کے کوہرے جواہر تھے خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ ظاہر ہے کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ یہ زمانہ میر کا زمانہ تھا، اور میر کے زمانے میں بے ثباتی دنیا کو موضوع بنایا گیا، یاس، نا امیدی اور روزگار نہ ہونے کے شکوے، اور شاعر معاشقوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ قوم جمود اور انحطاط اور زوال کا شکار تھی، اور اس میں سائی اور اجتہاد کی قوت باقی نہیں رہی، اور اس نے درجات عالیہ کی طرف سے آنکھیں بند کر لی اور مشاہدے کی قوت غائب ہو گئی۔ پریم چند کا مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ زندگی بدل چکی ہے، اس کے تقاضے بدل چکے ہیں، ادبی مذاق کو بھی بدلنا چاہیے، ادبی مزاج کو بھی بدلنا چاہیے۔ ادب محض دل بہلانے کی چیز نہیں ہے، دل بہلانے کے سوا اس کا کچھ اور بھی مقصد ہے، کچھ اور بھی ادب کی غرض و غایت ہے۔ وہ محض عشق اور عاشقی کے راگ نہیں الاپتا، بلکہ حیات کے مسائل پر غور کرتا ہے، نہ صرف زندگی کے مصائب و مسائل پر غور کرتا ہے بلکہ ان کا تجزیہ بھی کرتا ہے، ان کی تفہیم بھی کرتا ہے، ان کی تعبیرات بھی کرتا ہے، اور ان کا محاکمہ بھی کرتا ہے، اور ان کو حل کرنے کے لیے بھی بات کرتا ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جن کی طرف پریم چند نے اشارہ کیا۔ وہ اب تحریک یا الہام کے لیے حیرت انگیز واقعات تلاش نہیں کرتا یا قافیہ کے الفاظ کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اس کو ان مصائب و مسائل سے دلچسپی ہے جن سے معاشرہ یا سوسائٹی کے افراد متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی فضیلت کا موجودہ معیار جذبات کی وہ شدت ہے جس سے
وہ ہمارے جذبات اور خیالات میں حرکت پیدا کرتا ہے. اخلاقیات اور ادبیات کی منزل مقصود ایک ہے، یعنی اخلاقیات کا بھی وہی کام ہے، ایتھکس کا بھی وہی کام ہے، اور ادبیات کا بھی وہی کام ہے، یعنی دونوں کی منزل مقصود ایک ہے، صرف ان کے طرز خطاب میں فرق ہے، ان کے انداز میں فرق ہے. اخلاقیات دلیلوں، واعظ، نصیحتوں سے عقل اور ذہن کو متاثر کرنے کی کوشش کرنے کا نام ہے. ادب نے اپنے لیے کیفیات اور جذبات کا دائرہ منتخب کیا ہے. ظاہر ہے کہ ادیب جو زندگی میں جو کچھ دیکھتا ہے یا جو کچھ اس پر گزرتا ہے، وہی تجربات اور وہی چوٹیں تخیل میں جا کر تخلیق ادب کی تحریک کرتی ہیں. شاعر یا ادیب یا تخلیق کار میں جذبات کی جتنی ہی شدت ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا کام دلکش اور بلند ہوتا ہے. پریم چند کا ماننا یہ تھا کہ جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح نہ بیدار ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، ہم میں قوت اور حرکت پیدا نہ ہو، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، جو ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کے لیے سچا استقلال نہ پیدا کرے، وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے، اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ وہ نظریات تھے جو پریم چند نے انجمن ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے، یعنی یہ اپنی تحریر پیش کی تھی، جس کے نمایاں خد و خال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. 19ویں صدی کے وسط میں تین نے تاریخی نظریے کی روشنی میں ادب کی جانچ پرکھ شروع کی. اس کے متوازی کارل مارکس اور اینگلز نے معاشی یا اقتصادی نظریے کی نہ صرف بنیاد رکھی، بلکہ معاشیات سے متعلق کارل مارکس نے مارکۃ الآراء تصنیف داس کیپٹل میں اپنے معاشی نظریات پیش کر کے فلسفے کی تعبیرات کا زمینی حقائق کے ساتھ انسلاخ کیا. داس کیپٹل کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کارل مارکس کا فلسفہ یہ تھا کہ سماج کا نظام میں پیداوار ہی تاریخ کی ترتیب عمل میں لاتا ہے. اس کے خیال میں سماج کے معاشی اور اقتصادی ڈھانچے کے بغیر تاریخ کا کوئی وجود نہیں. سماج کے اس معاشی اور اقتصادی ڈھانچے سے بحث کرتے ہوئے اس نے سماج کو دو مختلف حصوں میں منقسم کیا. معاشی اور اقتصادی اعتبار سے سماج کی یہ تقسیم دو طبقوں میں ابھر کر سامنے آئی. ایک طبقہ بورژوا طبقہ کہلایا، جس میں مقتدر لوگ تھے، جس میں حکمران کرنے والے لوگ تھے، اور اس سیٹلائٹ کے دیگر پرزے تھے. تو دوسری طرف پرولتاریا طبقہ یا پرولٹیریٹ، جس میں کسان اور ٹیکنیکل مزدور شامل تھے. بورژوا یعنی سرمایہ داروں پر مشتمل تھا، جاگیرداروں پر مشتمل تھا. کارل مارکس نے انسانی فلسفے پر مادی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کی. کارل مارکس کا فلسفہ یہ تھا کہ سماج کے مادی رجحانات ہی انسانی ذہن کو جنم دیتے ہیں. کارل مارکس کی نظر میں، اس کے فکر و فلسفہ میں، فرد کا مادی وجود اور اس کے گرد لپٹا ہوا اس کا مادی معاشرہ اور ماحول کی اور فضا کی اولیت کا حامل ہے. اس کی نظر میں مادی دنیا ہی اٹل حقیقت ہے اور اسی سے انسانی شعور نشو و نما پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کارل مارکس نے یہ ضروری گردانا کہ ادب سوسائٹی میں برسر پیکار مادی قوتوں کی ترجمانی کرے. اس کے خیال میں، اس کے نظریے میں، اس کے فلسفے میں ادب کو ادبی اقدار اور اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے سماج اور ماحول کی نمائندگی کرنی چاہیے. انسانی زندگی میں ادب کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کارل مارکس کا فلسفہ یہ ہے کہ ادب ترقی پسند اور انسانیت پرست رجحانات و میلانات کا حامل ہونا چاہیے. ادب کا عوام کے لیے مفید ہونا از بس ضروری ہے. کارل مارکس کے فلسفے میں، کارل مارکس کی فکر میں ادیب کو انقلابی ہونا چاہیے تاکہ وہ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ طاقتوں سے لڑ سکے، ان کے ساتھ برسر پیکار ہو سکے اور مادی مرکزیت کو ختم کر سکے. اس کے خیال میں بڑا ادیب وہ ہے، بڑا تخلیق کار وہ ہے جو
क़ारीन के ज़ौक़े हुस्न, ज़ौक़े फ़िक्र और ज़ौक़े अमल को न सिर्फ आसूदा कर सके बल्कि तहर्रुक अता कर सके। यही वजह है कि कार्ल मार्क्स के फ़िक्र फ़लसफ़ा में अदीब की जड़ें अवामी ज़िंदगी में पैवस्त होने पर जोर मिलता है, ताकि वो अवामी ज़िंदगी के शब रूज़ से वाकिफ़ हो, उनके तजुर्बात से वाकिफ़ हो, उनके मसाइब व मसाइल से वाकिफ़ हो, उनके दुखों से वाकिफ़ हो और उन तमाम एलिमेंट से वाकिफ़ हो जहां जहां उनका माशी तौर पर इस्तेहसाल होता है। उन तमाम मुहर्रकात और इज्तिमाई जिंदगी से वाबस्ता होने के साथ साथ तख्लीक कार को हुस्नकारी से भी, जमालियात से भी काम लेना चाहिए। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के मज़कूरा ख्यालात और फिक्र फलसफा और नजरियात या आइडियोलॉजी ने पुराने अदबी ख्यालात, पुराने अदबी नजरियात की जगह इनकलाबी अदब का नारा बुलंद किया। अदबी और तनकीदी नजरियात में अदब के समाजी किरदार पर जोर दिया गया और अदब को या तख्लीकात को समाजी अफ़आल आमाल से ताबीर किया गया। मार्क्सी तनकीद में अदब जिंदगी और सोसाइटी के मादी इर्तका में शरीके कार होने के साथ साथ इर्तका के मुख्तलिफ मदारिज का भी एहसास होता है। कार्ल मार्क्स के फिक्र फलसफा में अगर अदब अवाम की कशमकश, अवाम की आवेजिश, उनके दुख दर्द और उनकी भूख का तर्जमान नहीं तो ऐसे अदब का कोई फायदा नहीं और ऐसे अदब को आम आदमी से कोई सरोकार भी नहीं। मार्क्सी नक्काद फनून लतीफा के आगाज का रिश्ता भी मुआशी तकाजों से मुंसलिक करते हैं, जोड़ते हैं। उनके ख्याल में काम करते वक्त मुंह से निकलने वाली आवाजें आहंग के सांचे में ढलकर तरन्नुम को पैदा करती हैं और यही गिनाई अनासिर जो मौसीकियत से लबरेज होते हैं शायरी की बुनियाद बनते हैं। इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ नौ हरकत क्या करते हैं, वो रक्स को, डांस को पैदा करते हैं। मार्क्सी या तरक्की पसंद तनकीद निगारों की नजर में तख्लीक मुहर्रक या तख्लीकी मुहर्रक वो मादी असबाब हैं जिन्हें हम इक्तसादियात का नाम देते हैं। मार्क्सी तनकीद निगारों का नुक्ता नजर यह है कि फनकार अपने तबके और जमाने की अक्कासी करता है, वो अपने तबके और अपने अहद या अपने दौर का तर्जमान होता है और अपने दौर की जिंदगी को एक्सप्रेस करता है। मार्क्सी तनकीद समाजी, मादी और तारीखी हकीकतों के साथ फन की दूसरी खूबियों को भी, फन के दूसरे महासिन को भी मद्देनजर रखती है और फिर तख्लीक का तनकीदी मुताला, ताबीरात और तज्जियात पेश करती है। एंगल्स ने कहा था कि सियासी, कानूनी, फलसफियाना, मजहबी, फनी और अदबी इर्तका मुआशी इर्तका से मदद हासिल करता है। दूसरे अल्फाज में मुआशी इर्तका के बगैर कानूनी, फलसफियाना, फनी, मजहबी, सियासी और अदबी इर्तका का कोई तस्वुर ही नहीं है। मुआशी कुव्वत सियासी, कानूनी और अदबी और फनी इर्तका को कुव्वत फराहम करती है, यानी अदबी नजरियात, अदबी अफकार, अदबी तस्वुरात मादी हक़ाइक़ के ज़ेरे असर होते हैं। यही वजह है कि किसी अदबी तख्लीक के तज्जिये के लिए मादी हालात को भी पेश नजर रखना अजबत जरूरी होता है। मार्क्सी नक्काद यह भी जांचने की कोशिश करते हैं कि तख्लीक समाजी इर्तका की किस मंजिल की नुमाइंदगी करती है, समाजी इर्तका के किस मोड़ की नुमाइंदगी करती है और इंसानी फिक्र फलसफा और उसकी तख्लीकी सलाहियत को किस हद तक नुमाया करती है। मज़कूरा अफकार को मद्देनजर रखते हुए मार्क्सी तनकीद तख्लीक का तज्जिया भी करती है, तख्लीक का मुहकमा भी करती है, तख्लीक की तफहीम भी करती है, तख्लीक की ताबीरात भी करती है। मार्क्सी तनकीद निगारों के ख्याल में अच्छा आर्ट और अच्छी तख्लीक वो है जो सच्चाई, हकीकत और सदाकत को बयान करे और जिसमें मुस्बत तौर पर जमालियाती अनासिर भी मौजूद हों, लेकिन उनका ज्यादा सरोकार यह है कि जो समाजी हक़ाइक़ हैं उनको बयान किया जाए, उनको एक्सप्रेस किया जाए, उनको अपनी तख्लीकात के जरिए पेश किया जाए, लोगों के, आम लोगों के मसाइब व मसाइल को अदब का मौजू बनाया जाए। उर्दू अदब में
मार्क्सी ख्यालात को नुमाया हैसियत हासिल हुई। मार्क्सी नजरियात से उर्दू नक्कादों का एक बड़ा गिरोह मुतासिर हुआ। उन नक्कादों में अख्तर हुसैन रायपुरी, सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, डॉक्टर अब्दुल अलीम, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, अख्तर अंसारी, अली सरदार जाफरी, प्रोफेसर मुमताज हुसैन, डॉक्टर कमर रईस, डॉक्टर मोहम्मद हसन, मजनू गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, ऐसे मुतअद्दिद नाम हैं। अहमद नदीम कासमी, ऐसे मुतअद्दिद नाम हैं जिन्होंने मार्क्सी नजरियात के फरोग के लिए काम किया। और अगर हम तख्लीक कारों की बात करें तो हमें सज्जाद जहीर जो है वो तख्लीकी सत्ता पर भी एक अहम किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं और तख्लीकी सतह पर भी उन्होंने शायरी की। या फिर हम फैज अहमद फैज को बहसियत तख्लीक कार देखते हैं, मखदूम महिउद्दीन को देखते हैं, या फिर हम दीगर लिखने वालों को देखते हैं। मार्क्स और एंगल्स के फिक्र फलसफा का असर गैर मुनकसिम हिंदुस्तान की समाजी जिंदगी में अदीबों के ज़हन फिक्र पर मुरतब हुआ, जो जंग आजादी के लिए जद्दोजहद में मसरूफ थे और उन गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के तख्लीककारों में जो आला तालीम हासिल करने के लिए यूरोप में मुकीम थे, उनमें मुतअद्दिद नाम मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, एमडी तासीर वगैरह शामिल हैं। ज्योति प्रसाद घोष वो भी शामिल हैं। जाहिर है सज्जाद जहीर ने अपने फिक्शन के जरिए, मुल्क राज आनंद ने अछूत जैसा नॉवेल लिखकर, सज्जाद जहीर ने लंदन की एक रात लिखकर, और हमें यह भी पता चलता है कि 1936 की तहरीक से पहले ही सब कॉन्टिनेंट में 1932 के जमाने में प्रोफेसर अहमद अली जैसा लिखने वाला अंगारे के मुसन्निफीन हमारे सामने आते हैं। रशीद जहां, महमूद जफर, प्रोफेसर अहमद अली वगैरह वगैरह, जिन्होंने एक तरह से वो जो जदलियात थी उसको न सिर्फ महसूस किया बल्कि अपने फिक्शन का हिस्सा बनाया, अपने फिक्शन के जरिए उसको एक्सप्रेस किया और बताया कि बुर्जुआ क्लास किस तरह से इस्तेहसाल करती है प्रोलेटारिया क्लास का। सज्जाद जहीर एक जगह पर लिखते हैं, फ्रांस के मजदूरों की बेदारी, ऑस्ट्रेलिया के नाकामयाब मजदूर इनकलाबात, आज उन वाकयात की अहमियत उन लोगों के नजदीक कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है या बहुत कुछ थी। यह तो बिल्कुल जाहिर मालूम होता था कि इंसानियत के लिए बहुत दिनों तक अमन सुकून चैन का खातिमा हो गया। बड़ी सख्त कशाकश, जद्दोजहद, बैनुल अक़वामी जंग, इनकलाब के दौर का आगाज हम अपने चारों तरफ देख रहे थे। क्या आदमियत कभी आतिशो आहन से निजात हासिल कर सकेगी? और क्या यह मुमकिन था कि हम जवान जिनकी रगों में जिंदगी का गर्म खून गर्दिश कर रहा था अपने को उस तूफान से बचा सकेंगे? लिहाजा हम रफ्ता रफ्ता सोशलिज्म की तरफ माइल होते जा रहे थे। हमारा दिमाग एक ऐसे फलसफे की जुस्तजू में था जो हमें समाज की दिन ब दिन बढ़ती हुई पेचीदगियों को समझने और सुलझाने में मदद दे सके। हमें इस बात से इत्मीनान नहीं होता था कि इंसानियत पर हमेशा से मुसीबतें और आफतें रही हैं और हमेशा रहेंगी। मार्क्स और दूसरे इस तरह की मुसन्निफीन की किताबें हमने बड़े शौक से पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे हम अपने मुताला को बढ़ाते, आपस में बहसें करके तारीखी और समाजी और फलसफियाना मसलों को हल करते, उसी निस्बत से हमारे दिमाग रोशन होते और हमारे कल्ब को सुकून होता जाता। यूनिवर्सिटी की तालीम खत्म करने के बाद यह एक नए लामुतनाही तहसील इल्म की इब्तिदा थी। हमारे छोटे से ग्रोह में अक्सर मुसन्निफ बनना चाहते थे और करते भी क्या, मजदूरी करने की हमें अहलियत ना थी, किसी किस्म का हुनर हमने सीखा ना था, साम्राज्य सरकारी नौकरी से हमें घिन आती है। तो फिर बाकी क्या रहा? एक दिन कई आदमियों के मशवरे से मेरे कमरे में बाकायदा मीटिंग हुई जिसमें 6-7 आदमी से ज्यादा आदमी न थे और हमने इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमेटी बना ली। पहले तो काम बहुत ढीला रहा लेकिन जल्द ही सबकी दिलचस्पी बढ़ने लगी।
اور یہ طے ہوا کہ اپنے مقاصد کا مختصر اظہار ایک مینیفیسٹو کے ذریعے کرنا چاہیے. 4-5 آدمیوں کے سپرد یہ کام کیا گیا. ملک راج آنند نے پہلا مسودہ تیار کیا، وہ بہت لمبا تھا. پھر یہ کام ڈاکٹر جیوتی پرساد گھوش کے سپرد ہوا. پھر میرے ذمہ یہ کام دیا گیا کہ میں آنند اور گھوش کے مسودوں کی ترمیمیں کر کے آخری مسودہ کمیٹی کے سامنے پیش کروں. بڑے جھگڑے بکھیرے اور ایک ایک جملے اور لفظ پر لمبی بحثوں کے بعد آخر کمیٹی نے مسودہ منظور کیا. ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی پہلی باقاعدہ میٹنگ منعقد کی. اس درمیان میں لندن، آکسفورڈ اور کیمبرج کے ادبی ذوق رکھنے والے ہندوستانیوں میں بھی ہم نے کافی پروپیگنڈا کر لیا تھا. لندن کا ایک چینی ریستوراں والا ہم پر خاص طور پر مہربان تھا. وہ اپنے ریستوران کا ایک پیچھے والا کمرہ میں اپنی میٹنگوں کے لیے مفت دے دیا کرتا تھا. اس چھوٹے سے بے ہوا کے تہ خانے کے کمرے میں 40-50 آدمی ٹھس سکتے تھے. وہیں ہماری پہلی باضابطہ میٹنگ ہوئی. ملک راج آنند پریزیڈنٹ منتخب کیے گئے اور پھر ہم نے کمیٹی کی طرف سے مینیفیسٹو کا مسودہ پیش کیا جو چند مزید ترمیموں کے بعد ایسوسی ایشن نے منظور کیا. ہم 3-4 جو ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو میں چنے گئے اس میٹنگ سے بہت مطمئن تھے. لندن میں 30-32 ہندوستانیوں کو اکٹھا کر لینا ہی بہت بڑی بات تھی. دوسرے یہ کہ مینیفیسٹو کا مرتب ہو جانا، ہمارے اپنے خیالات کو جو منتشر سے تھے منضبط کرنا تھا. ترقی پسند کیا ہے؟ ترقی پسند مصنفین کا مقصد کیا ہے؟ انہیں کس طرح کام کرنا چاہیے؟ ان سوالوں کا جواب ابتدائی شکل میں ہمارے اعلان میں موجود تھا اور یہ بڑی بات تھی. یہ سجاد ظہیر نے اپنے ایک مضمون یادیں میں یہ سب کچھ حوالہ قلم کیا ہے. سجاد ظہیر کے مذکورہ تاثرات سے اس پس منظر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس پس منظر میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھی گئی تھی. مذکورہ تحریک چند انقلابی نوجوان طلبہ کے حوصلوں کی پیداوار تھی، لیکن جلد ہی مذکورہ تحریک کی جڑیں مضبوط ہو گئی اور مذکورہ تحریک ترقی پسند ادیب ایک نئے سماج کی تعمیر میں انہماک کے ساتھ تمام لکھنے والے کام کرنے لگے. شعری اور افسانوی ادب میں ترقی پسند تخلیق کاروں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، لیکن تنقید کا میدان بھی برابر ادب پاروں کی، فن پاروں کی جانچ پرکھ کرتا رہا. اختر حسین رائے پوری نے اردو کے پہلے ترقی پسند نقاد کے طور پر اپنا مضمون ادب اور زندگی حوالہ قلم کیا. مارکسی نظریات کو اختر حسین رائے پوری نے مرکزی حیثیت سے اپنے مضمون میں پیش کیا. ظاہر ہے کہ اختر حسین رائے پوری کے بعد سجاد ظہیر نے بھی تنقید کے میدان میں اور فکشن کے میدان میں اپنے کام کو جاری رکھا. سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں. سجاد ظہیر کے سیاسی نظریات میں مارکسی سوچ کی واضح جھلک ملتی ہے. نظریاتی تنقید کے سلسلے میں ان کی کوئی باقاعدہ کتاب نہیں ہے. ترقی پسند تحریک کی تاریخ، روشنائی اور ذکر حافظ ان کی تنقیدی بصیرت پر روشنی ڈالتے ہیں. خلیل الرحمن اعظمی کا شمار بھی ترقی پسند تنقید نگاروں میں ہوتا ہے. سجاد ظہیر کی ادب کے مادی نظریات خاص طور سے اہمیت کی حامل ہے. ان کی مشہور تصنیف یعنی خلیل الرحمن اعظمی کی مشہور تصنیف اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کے ان نظریہ فکر اور فلسفے کی ترجمانی کرتی ہے. علی صفدر جعفری کی مشہور تصنیف میں ان کے فکر و فلسفہ سے اختلاف کی گنجائش تو ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے مارکسی نقطہ نظر سے ادب کے مطالعات اور ادب کی تفہیمات کی جدوجہد کی. انہوں نے حالی، اقبال اور اختر شیرانی سے لے کر اسرار الحق مجاز اور نثر نگاروں میں پریم چند سے لے کر عصمت منٹو، سعادت حسن منٹو تک شاعری اور افسانہ نگاری کو ترقی پسند تحریک کے منشور مینیفیسٹو کی روشنی میں جانچا، پرکھا، لکھا اور اپنی تنقیدات کے ذریعے علی صفدر جعفری نے ایک ایسا شعور عام لوگوں کو دیا، ادب کے قارئین کو دیا کہ جس سے جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ ادب پارہ کس طرح کا ہوتا ہے اور ادب پارے کا بنیادی مقصد کیا ہے. ترقی پسندی کے بعض بنیادی مسائل، فیض احمد فیض کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ،
अली सरदार जाफरी का बुनियादी मरकज़ महवर रहा। अली सरदार जाफरी फैज अहमद फैज के सिलसिले में लिखते हैं, फैज अहमद फैज ने अपनी 15 अगस्त की नज्म में इस तारों के कुछ ऐसे पर्दे डाल दिए हैं जिनके पीछे पता नहीं चलता कि कौन बैठा है। उसका पहला शेर है, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। और आखिरी मिसरा, चले चलो कि वो मंजिल लबी नहीं आई। असल में एक बात यह भी है फैज अहमद फैज साहब के हवाले से कि फैज साहब शायर हैं, फैज साहब तख्लीककार हैं, वो अपनी बात कहने का ढंग रखते हैं, सलीका रखते हैं, वो अपनी बात अपने अंदाज से कहते हैं, खल्लाकना चाबुक दस्ती का इस्तेमाल करते हैं, तख्लीकियत के साथ उनकी फिक्र जो है वो, यानी फिक्र और फन दोनों का इम्तजाज जो है वो एक हसीन इम्तजाज देखने को मिलता है। जाहिर है कि वो अलामात और तशबीहात और इस्तारात का सहारा लेकर जो है वो शेर खल्क करते हैं, नज्म तख्लीक करते हैं। जाहिर है कि वो सीधे सभाओं में बात नहीं करते, वो नारा नहीं बनने देते। यही वजह है कि तरकीब पसंद लिखने वालों में, तख्लीककारों में फैज अहमद फैज बहसियत शायर के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। तरक्की पसंद तहरीक तारीखी तनाजुर में, तहरीक के मुखालिफ मीडिया ने पहली तरक्की पसंद मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के बाद मज़कूरा तहरीक को मीडिया में काफ़ी कवरेज दी। तहरीक के मुखालिफ प्रेस को भी 1936 में लखनऊ में पहली तरक्की पसंद मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के बाद मज़कूरा तहरीक को काफ़ी जगह देना पड़ी और तवज्जो सर्फ करनी पड़ी। कलकत्ते के स्टेटसमैन ने तहरीक पर हमला करते हुए मुबैना तौर पर हुकूमत के ईमा से 2 किस्तों में एक तवील मजमून छापा, जिसमें उसे हिंदुस्तान की कदीम तहजीब, हिंदुस्तान के कल्चर के शानदार रूहानी वर्से के खिलाफ भयानक कम्युनिस्ट साजिश का हिस्सा करार दिया। कहा जा सकता है कि मज़कूरा हमले से तहरीक को नुकसान से ज्यादा फायदा पहुंचा। तहरीक से किनारा कश होने वाले बहुत कम लोग थे। अमरनाथ झा जैसे लोगों ने अपनी हिमायत का आम ऐलान वापस ले लिया, मगर निजी तौर पर तहरीक की हिमायत करते रहे और ऐसे चंद लोगों की हिमायत हासिल न रहने की कमी मज़कूरा तहरीक की बढ़ती हुई मकबूलियत से पूरी हो गई। उर्दू और हिंदी बोलने वाले इलाकों में तरक्की पसंद तहरीक को नुमाया कामयाबी मिली। 1937 और 1948 में उर्दू और हिंदी के तरक्की पसंद अदीबों की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेमचंद की हिमायत के अलावा लखनऊ से अंग्रेजी में एक सेमाही रिसाला निकालना तय किया, जिसके मुदीर अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल अलीम को मुकर्रर किया गया, जिन्होंने सैयद सज्जाद जहीर के बाद मज़कूरा ओहदे को संभाल लिया था। इदारती बोर्ड भी मुकर्रर हुआ, जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ अहम जबानों के नुमाइंदे थे। यह सेमाही न्यू इंडियन लिटरेचर के नाम से 1939 में शाये हुआ। इदारती बोर्ड में हिंदुस्तानी यानी उर्दू, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के नुमाइंदों के अलावा अंग्रेजी और दूसरी जबानों के नुमाइंदे की हैसियत से मुल्क राज आनंद और राजा राव भी शामिल थे। पहले शुमारे में ज्यादातर कोलकाते में होने वाली कॉन्फ्रेंस की तहरीरें शाये की गई। अमली तौर पर नए मंशूर के मुतय्यना मकासद पर बहुत ज्यादा अमल न किया जा सका, चूंकि वह दूर अज़कार थे। जाहिर है कि बाज पर कभी अमल दरामद ना हो सका और बाकी भी सिर्फ जुज़वी तौर पर ही पूरे हुए। मकामी शाखें बनती गईं और बिखरती गईं, काहे कि तहरीक की मकामी शाखें, और कुछ वक्फे के बाद दोबारा बन गईं और बहुत कम ऐसी थीं जो काफी मुद्दत तक बाकायदगी से काम करती रही हों। रिसाला अगरचे बाकायदगी से 3 माह की मुद्दत में न निकल सकता था, लेकिन 1939 में दूसरी जंग अजीम की पैदा करदा जबरदस्त दुश्वारियां ना होती तो शायद निकलना जारी रहता। 1939 में 2 शुमारे छपे। उसी जमाने में मुल्क राज आनंद इंग्लिस्तान गए और जंग छिड़ जाने की वजह से लंदन में फंस कर रह गए। डॉक्टर अब्दुल अलीम और
दीगर लिखने वाले तरक्की पसंद तहरीक के साथी जेल में डाल दिए गए और इस तरह सेमाही न्यू इंडियन लिटरेचर रिसाला बंद हो गया। 1942 में तहरीक दोबारा जिंदा हो गई, जबकि चंद माह के बाहमी मुबाहिसों के बाद गैर कानूनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जंग में हिमायत का ऐलान किया और हुकूमत हिंद ने उसके नुमाइंदों से तवील खुफिया मुज़ाकरात के बाद 1942 के आखिर में उसे कानूनी हैसियत दे दी, कानूनी हैसियत से उसे तस्लीम कर लिया। किसको? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। अगस्त में कांग्रेसी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और मुस्लिम लीग के इंतकाल इक्तदार के बाद सिर्फ मुसलमानों के मुस्तकबिल के मामलात से इन्हिमाक के सबब कम्युनिस्टों और उनके हमदर्दों को मैदान खाली मिल गया और तरक्की पसंद मुसन्निफीन में उनका असर और रसूख तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन तरक्की पसंदों ने उस दौर में बॉम्बे में सबसे ज्यादा फरोग पाया। वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे पुरानी सनती तंजीम थी और उसका सदर दफ्तर वाक़ था और उसके हफ्तावार अखबारात निकलते थे। उनमें एक उर्दू अखबार भी था जिसकी माली हैसियत ऐसी हो गई थी कि वो चंद पुराने तरक्की पसंद तहरीक के मुनज़्ज़म करने वालों को कुल वक्ती कारकुन मुकर्रर कर सके। बॉम्बे खुद भी बैनुल अक़वामी तर्ज का शहर था जिसमें दूसरी कौमियतों के अलावा गुजराती, तामिल, मराठी, मलयालम, उर्दू और हिंदी बोलने वाले भी मौजूद थे। अंजुमन का फरोग यूपी के मुकाबले में किसी कदर मुख्तलिफ अंदाज में वहां हुआ और मज़कूरा तहरीक पूरे हिंदुस्तान की रंगारंगी का मिसाली नमूना बन गई। 1947 के बाद उस वसी तर मुश्तरका महाज की फजा को खत्म कर दिया जिसमें तरक्की पसंद तहरीक को फरोग मिला था, क्योंकि 1942 के बाद कम्युनिस्टों को हंगामी मामलात में सियासी सरगर्मी की जो गैर मुतनासिब इजारादारी हासिल हो गई थी वो भी खत्म हो गई। पुराने कांग्रेसी दोस्तों ने, साथियों ने, कॉमरेडों ने, जिनमें नेहरू भी शामिल थे, 1946-47 में जबरदस्त कम्युनिस्ट दुश्मन मुहिम चलाई और खुद कम्युनिस्ट पार्टी की सरगर्मी में जोशी की माजूली के बाद जो इंतहा पसंदाना पॉलिसी अपनाई उसने हालात में जबरदस्त तब्दीली पैदा कर दी जिनमें अब तक तब्दीली की गुंजाइश नहीं थी। तरक्की पसंद तहरीक जाहिर है कि एक लिहाज से काम करती आई थी और नए दौर के आगाज से एक नई बहस और नए सिलसिले का आगाज जो है वो हो गया। तरक्की पसंद तहरीक की सरगर्मियों में एक तरह की तब्दीली आई। तरक्की पसंद तहरीक ने अपने मंशूर में शामिल मकासद के तहत फनून लतीफ़ा को अवाम से करीब लाने के लिए भी काम किया। अपने दौर उरूज में तरक्की पसंद तहरीक ने नुमाया कामयाबियां भी हासिल की। 1937 की सरगर्मियों में पंजाब के तरक्की पसंदों ने अमृतसर में पहली सूबाई कॉन्फ्रेंस न सिर्फ पंजाब की किसान कमेटी के साथ मुनक्किद की बल्कि तारीखी जलियांवाला बाग में उन्हीं के पिंडाल में मुनक्किद की और इस तरह अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उरूज जो है वो हमें देखने को मिलता है। तरक्की पसंद तहरीक और कायदाना आमाल व अफ़आल। तरक्की पसंद तहरीक और उसके फैलाव और मुतहर्रिक होने के अमल पर तफक्कुर करने से पता चलता है कि मज़कूरा तहरीक किसी एक खित्ते या मुल्क व देहात तक महदूद नहीं थी। जब अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई सूबाई सतह पर तो सज्जाद ज़हीर और कुंवर मोहम्मद अशरफ गैर मुतवक्के तौर पर यूपी के किसानों के नुमाइंदों की हैसियत से वहां मौजूद थे। तरक्की पसंदों को पिंडाल में कॉन्फ्रेंस करने का ख्याल इस बिना पर आया था कि उन्हें शहर में जलसा करने के लिए हॉल नहीं मिला था और हॉल देने से इनकार करने वालों में अमृतसर के MAO कॉलेज वाले भी शामिल थे। हालांकि
ترقی پسندوں کے ایک ہمدرد ایم ڈی تاثیر اس کالج کے پرنسپل تھے، اور دوسرے فیض احمد فیض اس کالج کے لیکچرر تھے، اور تیسرے عارف عبد المتین بھی وہی تھے۔ اس صورت میں کسانوں میں ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ اس سطح پر فیصلے کرنے والے لوگ نہیں تھے کہ وہ فیصلہ کر کے امرتسر کے لوگوں کو ایک طرح سے ہال جو ہے وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ مذکورہ صورت میں کسانوں میں ہندی ادیبوں کی تحریک سے دوری بڑی حد تک ختم ہونے لگی، اور 1938 کی الہ آباد کانفرنس میں ہندی کے ممتاز ترین شاعر میتھلی گپت نے شرکت کی اور نظم بھی پڑھی۔ اس کانفرنس میں نہرو نے شرکت کی اور لمبی تقریر کی۔ تحریک کی مزید کامیابی یہ تھی کہ سجاد ظہیر نے رابندر ناتھ ٹیگور سے حمایت کا اعلان اور کانفرنس کے لیے پیغام حاصل کر لیا۔ روشنائی میں ان کا پیغام تفصیل سے دیا گیا ہے۔ کس کا پیغام؟ رابندر ناتھ ٹیگور کا پیغام۔ اس سے ٹیگور کے نقطہ نظر میں پریم چند ہی کی مذکورہ بالا تبدیلیوں کی طرح نمایاں تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ اقتباس کچھ اس طرح سے تھا: خلوت پسند میری طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، مگر جو ادیب بھی اپنے آپ کو معاشرے میں دور رکھتا ہے، معاشرے سے دور رکھتا ہے، وہ انسانوں کو نہیں جان سکتا۔ الگ تھلگ رہ کر ادیب ان تجربوں سے خود کو محروم کر لیتا ہے جو بہت سے لوگوں سے ملنے جلنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ معاشرے کو جاننا اور سمجھنا اور اسے ترقی کی راہ دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سماج کی نبض پر انگلی رکھیں اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہماری ہمدردیاں انسانیت کے ساتھ ہوں اور ہم ان کے درد و غم میں ہوں۔ نئے لکھنے والوں کو لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ان سے الگ تھلگ رہے تو وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اب تک سماج سے الگ تھلگ رہ کر بھاری غلطی کی۔ میرے دل میں یہ بات چراغ کی طرح روشن ہے اور کوئی دلیل بھی اسے بجھا نہیں سکتی۔ ترقی پسند تحریک کے بنیادی فکری عناصر: ایسے لوگوں کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے جو کسی دوسرے نظریے سے منسلک یا وابستہ نہ ہوں۔ ایسے لوگوں کی حمایت کرنا جو دوسری تحریکوں سے منسلک یا وابستہ تو ہیں لیکن ترقی پسند فکر کے مخالف نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی حمایت حاصل کرنا ہوگی جو رہنما کی حیثیت سے پہلے ہی اپنی جگہ بنا چکے ہوں اور جن کے مقلدین پہلے سے ہی موجود ہوں، تاکہ وہ اپنے اثر و اقتدار والے طبقے کو بھی ترقی پسند تحریک کے حق میں متاثر کر سکیں۔ ترقی پسند تحریک نے یہ تینوں کام کیے، پہلے دو بڑی کامیابی سے 1942 کے وسط کے دور تک کیے جب بائیں بازو کو غیر معمولی طور پر سازگار حالت میں کام کرنے کا موقع ملا، اور آخر ذکر کام اپنے پہلے دور میں 1935 سے 1939 تک سر انجام دیا۔ دوسری خصوصیت، دوسرا وصف جو پہلی کی طرح صرف ہندوستان تک محدود نہیں، اس تحریک کے رہنماؤں کی ابتدائی دور میں اپنے کو اور اپنی تحریک کو مختلف بااثر سماجی اور سیاسی گروہوں سے ہم آہنگ کرنے کی صلاحیت تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا تحریک کو بنانے کے لیے اس طریقہ کار کو اہمیت دینا برائے خود ایک وصف خاص تھا۔ نظریاتی طور پر غیر وابستہ لوگوں سے براہ راست اور عام اپیل کرنے کے مقابلے میں اور اس کے نتیجے کے طور پر زیادہ واضح اصولوں کی روشنی اور زیادہ باضابطگی سے کام کرنے کی صورت میں مذکورہ خطوط کا مدھم اور غیر واضح ہو جانا جو ترقی پسندوں کو دوسرے سیاسی اور سماجی اور ادبی گروہوں سے ممیز کرتے تھے، قابل ذکر ہے۔ سجاد ظہیر اس طرح کی صورتحال سے بڑی خوبی سے نبٹتے تھے۔ پہلے تو وہ اونچی سوسائٹی والے طبقہ اشرافیہ والے لوگوں کی کھل کر مذمت کرتے تھے، مگر جلد ہی ظاہر ہو جاتا کہ وہ اسی قسم کی سوسائٹی میں آسودہ ہوتے ہیں اور اسی قسم کے افراد یا لوگوں سے ذاتی اور سیاسی رابطہ رکھنا مناسب جانتے تھے، بشرطے کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں سے نمایاں طور پر مختلف ہیں، لیکن ایسا کوئی واضح اور نمایاں فرق ظاہر نہیں ہوتا۔ ان سے کم نفاست رکھنے والے ترقی پسندوں میں یہ آزاد اور سہل موقع پرستی زیادہ واضح ہے۔ سجاد ظہیر نے اس کی جو ایک دلچسپ مثال دی وہ 1942 میں دہلی میں کل ہند ترقی پسند مصنفین کانفرنس کے کرنے کے سلسلے میں کرشن چندر کی کوششوں کے بیان میں ملتی ہے۔ کرشن چندر ہمیشہ سے ترقی پسندی کے پرجوش حامی رہے ہیں اور سجاد ظہیر نے اس معاملے میں ان کو بری کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ صاف ظاہر ہے کہ
उनका तर्ज इस्तिदलाल कुछ इस तरह का था कि 1939 से ताहाल हुकूमत की पॉलिसी की वजह से तरक्की पसंद मुसन्निफीन पर सख्त वक्त गुजरा है। और फिर उसके रहनुमा यानी तरक्की पसंद तहरीक के रहनुमा बाहर जेल चले गए और फिर जेल से बाहर आ गए। इस तरह फिर से मुनज़्ज़म होना शुरू हुए और काम करने का सिलसिला शुरू किया। लिहाजा जहां तक मुमकिन था सभी बड़े बड़े मशाहिर को कॉन्फ्रेंस में यकजा कर लेना जरूरी समझते थे। नतीजा यह हुआ कि ऐसे ऐसे लोगों को दावतनामे भेजे गए जिनको किसी तरह खैज तान कर तरक्की पसंदों का हमदर्द नहीं कहा जा सकता था। बहुत से ऐसे भी थे जिनको यह ख्याल था कि कम्युनिस्ट पार्टी अब कानूनी हैसियत की हामिल हो गई है और अब काबिल एहतराम है, इसलिए उनकी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से जंगी कार्रवाइयों में हुकूमत की हिमायत साबित होगी और उन्हें बरतानवी हुकूमत की खुशनुदी हासिल हो जाएगी। लिहाजा वो सब तरक्की पसंद तहरीक का हिस्सा बन गए। जब सज्जाद जहीर और अब्दुल अलीम कॉन्फ्रेंस के मौका पर दिल्ली पहुंचे तो उन्हें मज़कूरा सूरत हाल से दो चार होना पड़ा। तंजीम का काम कृष्ण चंद्र को दोनों ने बखुशी दिया था। डॉक्टर अब्दुल अलीम ने दुश्वारी को एक साथ एक की जगह दो कॉन्फ्रेंसें करके हल किया। एक कॉन्फ्रेंस तरक्की पसंदों की थी, दूसरी आम अदीबों की। जाहिर है कि यह एक फिक्री सतह पर, एक फलसफियाना सतह पर फैसला था कि एक तरफ जो है वो तरक्की पसंद लोग होंगे तो दूसरी तरफ जो है वो लिखने वाले जो तरक्की पसंद नहीं थे। इस तरह की नामवारी तरक्की पसंदों की अदबी तख्लीकात में भी रही है और असर हाजिर में भी इस तरह के मामला देखने को मिलते हैं। जाहिर है कि अब जब हम हाल की बात करते हैं, मौजूदा दौर की बात करते हैं, तो तरक्की पसंद अदीब अब भी काम कर रहे हैं और जाहिर है कि अब भी मामला उसी तरह का है। और इसकी वाज़ेह तरीन मिसालें माजी में अगर हम देखें तो कृष्ण चंद्र ही के यहां मिलती हैं। उन्होंने जल्द ही खुद को तरक्की पसंद उर्दू अफसाने निगार की हैसियत से मनवा लिया और बिला शुबा उनकी बाज़ तख्लीकात बहुत अच्छी हैं। अक्सर तख्लीकात आलमी मयारात पर पूरी नहीं उतरती, अगरचे उनसे तरक्की पसंद मकासिद पूरे होते हैं। उर्दू पढ़ने वालों पर उनका असर बहुत गहरा होता है। जब 1950 में इस तरह की उनकी बाज़ कहानियों के बारे में तनकीद की तो वो जरा खफा नहीं हुए और दो और तरक्की पसंद मुसन्निफीन यानी राजेंद्र सिंह बेदी और इस्मत चुगताई का नाम लेने लगे कि शायद उन दोनों के अफसाने उनके अपने अफसानों के मुकाबले में अंग्रेजी में तर्जमे के लिए ज्यादा मुनासिब और मौजू होंगे। उसी के साथ उन्होंने यह भी कहा था कि ये और इसी किस्म की दूसरी कहानियां बड़े मजमुओं में पढ़ी जा सकती हैं, बड़े मजमुओं में पढ़ी जा सकती हैं और मजमुओं में शामिल की जा सकती हैं और इंतखाबात में शामिल की जा सकती हैं और वो बहुत मकबूल हुई हैं और वो इसी किस्म की कहानियां लिखते रहना चाहते हैं। जाहिर है कि यह रवैया जरा भी काबिल एतराज नहीं था। भयानक हिंदू मुस्लिम फसादात के दिनों में उन्होंने यानी कृष्ण चंद्र ने अनगिनत कहानियां उस पैगाम की खातिर लिखी, मुहज्जब और शाइस्ता इंसानों को फिरका वाराना कत्ल गारतगरी से नफरत करनी चाहिए और उन्हें रुकना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए। अगर वो कहानियां अजीम अदब ना भी हों तो भी कोई संजीदा और दर्दमंद इंसान उसका इनकार नहीं कर सकता कि कृष्ण चंद्र ने उन कहानियों को लिखकर इंसानियत की खिदमत की है। यह दूसरा मामला है कि वो उससे एक कदम और आगे बढ़कर ये इस्तिदलाल करने लगते हैं उन्हीं के अल्फाज में। मैं अपने पढ़ने वालों को वही देता हूं जो वो चाहते हैं, अगर वो उसे पसंद करते हैं तो मुझे भी पसंद करने लगेंगे और मैं चूंकि तरक्की पसंद हूं लिहाजा तरक्की पसंदी के लिए उनकी हिमायत हासिल करूंगा। अनकोट। जाहिर है इस किस्म की मंतिक कैसे मार्का आरा नताइज पैदा कर सकती है। तो उनकी किताब लंदन की 7 रातें मुलाहजा की जा सकती है जो अंग्रेजी तर्जमे की सूरत में भी मौजूद है। मगरबी अक़वाम के सिलसिले में एक बात की जा सकती है, यह सतहियत दूसरी चीजों के साथ उस किताब से भी जुड़ी हुई है। कृष्ण चंद्र को लंदन में जो चीज सबसे ज्यादा दिलकश लगी वो पेटीकोट लेन में एक पुराने पंजाबी दोस्त की तलाश थी जो
वहां एक मामूली ताजिर था और सड़क पर सामान बेचता था, या फिर बीबीसी में काम करने वाले हिंदुस्तानियों की हमराही में उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों की सैर की। कृष्ण चंद्र की किताब का नुक्ता उरूज वो मज़ेका खेज कहानी है जिसके एक किरदार वो खुद हैं। वो कहानी एक ऐसी पुरानी अंग्रेज माशूका की कहानी है जिसे निहायत मालदार किस्म की मर्द मार औरत दिखाया गया है, और जो उनका अपने शानदार महल नुमा मकान में इस्तिकबाल करती है और अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल में भी ये जानकर अपनी दानिश में गरकाब करके चली जाती है कि उन्हें तैरना नहीं आता। इस तरह की तहरीरें भी पुरानी दास्तान गोई ही का हिस्सा है, लेकिन शायद इसका बेहतरीन हिस्सा नहीं है और न ही किसी किस्म का तरक्की पसंदाना मकसद पूरा करती हैं। कृष्ण चंद्र ने अपने 2 जिल्दों के तरक्की पसंद अदब के इंतखाब में नए जाविये में नून मीम राशिद की एक नज्म इंतकाम शामिल की है। नून मीम राशिद जदीद शायर के तौर पर मंजरे आम पर आए, अगरचे उन्हें तरक्की पसंद नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। उनकी नज्म में एक हिंदुस्तानी एक अंग्रेज औरत से जिनसी इख्तलात करता है और तरक्की पसंदाना मंतिक यह है कि हाकिम नस्ल की औरत से महकूम नस्ल के एक शख्स का इस किस्म की हरकत करना नौ आबादियाती निजाम में गुलामी का इंतकाम है। यही वो नून मीम राशिद है जिनके मजमूआ कलाम का दिवाचा तरक्की पसंद शायर फैज अहमद फैज ने लिखना पसंद किया, शायद इस वजह से कि तरक्की पसंद हजरात भी उसे बहरहाल खरीदेंगे और एक जदीद शायर के कलाम के दिबाचा लिखने से दूसरे शायर जदीद शायर भी करीब आएंगे। कृष्ण चंद्र ने नून मीम राशिद के मजमूआ कलाम मावरा का दिबाचा लिखा। तरक्की पसंद अदब को किसानों तक पहुंचाने और किसानों के जज्बात और एहसासात को तरक्की पसंद अदब में समोने के सिलसिले में और भी ज्यादा दिक्कतें थीं। उनका अंदाजा माजी में 1938, 1937, 1938 की 2-1 मिसालों से लगाया जा सकता है। जब हम कृष्ण चंद्र, नून मीम राशिद, सज्जाद जहीर, फैज अहमद फैज, यहां तक कि कृष्ण चंद्र ने जो नून मीम राशिद के मजमूआ कलाम मावरा का दिबाचा लिखा है उस तक आते हैं, तो हम कुछ मसाइल के बारे में कुछ ना कुछ कह सकते हैं जो तरक्की पसंद तहरीक जैसी तंजीमों की लीडरशिप को पेश आते थे, और उमूमी अंदाज में और मारूजी तौर पर ऐसे मामलों का भी जिक्र किया जा सकता है जिनके सिलसिले में तरक्की पसंद अदीबों के कारनामे और कमजोरियां उनके हकीकी और तारीखी हैसियत से ताल्लुक रखती हैं, या अगर हम गैर जानिबदारी से कहें तो वो तारीखी हैसियत से गैर मुतल्लिक है। दिसंबर 1938 के दस्तूर में बयान करदा बुलंद मकासद किसी भी रजा काराना तहरीक के लिए खाह उसकी रहनुमाई कैसे ही लायक हाथों में क्यों ना हो नाकाबिल हुसूल थे। कुल हिंद सतह पर मजकूरा तहरीक को अंग्रेजी में काम करना पड़ता था। यह सूरत मुल्क गिर इदारे की थी, ताहम यह तहरीक न सिर्फ अंग्रेजी ही में नहीं बल्कि 12-15 बड़ी हिंदुस्तानी जबानों में तरक्की पसंद अदब की तख्लीक चाहती थी। अगरचे उसने बजा तौर पर अंग्रेजी को खारिज नहीं किया, इस तरह की तहरीक को कुल हिंद मकबूलियत और हम आहंगी कायम करने के लिए किसी न किसी तरह हर जबान के नुमाइंदा शाहकारों को दीगर सभी जबानों में फौरी तर्जमा करने का काम अंजाम देना जरूरी था, और यह काम इतना बड़ा था कि हुकूमत के माली वसाइल से चलने वाले इदारे ही ऐसे काम को सर अंजाम दे सकते थे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जाहिर है अगर हम देखें तो यह सूरत हाल नहीं थी, लेकिन तकसीम के बाद साहित्य अकादमी ने यह काम अपने हाथ में ले लिया था। शायद अंग्रेजी में लिखने वाले तरक्की पसंद मुसन्निफीन मुख्तलिफ इलाकों के अदब को मुतल्लिका जबानों से अंग्रेजी में तर्जमा करके कुल हिंद मानवीयत और कबूलियत दिलवाने का वसीला साबित हो सकते थे, लेकिन अंग्रेजी लिखने वालों में सिर्फ मुल्क राज आनंद थे जो चंद साल से ज्यादा तहरीक के साथ रहे। दूसरे लोगों ने मसलन प्रोफेसर अहमद अली जल्द ही महसूस कर लिया कि किसी हिंदुस्तानी जबान में लिखते वक्त, मसलन प्रोफेसर अहमद अली खुद लिखते हैं, उनके मुखातिब हिंदुस्तानी होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखते वक्त उनके मुखातिब हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले लोग बिलखुसूस अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं, और इस वजह से उनकी दिलचस्पी का मैदान बदल गया और उसमें तरक्की पसंद तहरीक की हैसियत जिमनी होकर रह गई। और यह उस हद तक हुआ कि अगर ये हजरात तरक्की पसंद हलकों में सरगर्म भी रहते तो भी हालात के धारे को शायद ही मुतासिर कर पाते।
जहां तक तर्जुमों का ताल्लुक है, तर्जुमे के काम से कुदरती और किसी कदर जायज दूरी से कतई नजर उन्होंने यह भी महसूस कर लिया होगा कि दूसरों की तसानीफ के तर्जमे पर वक्त सर्फ करने से कहीं बेहतर है कि वो खुद तवाज़ात तसानीफ में वक्त सर्फ करें। यह भी हकीकत है कि बहुत कम हिंदुस्तानी हैं जो अंग्रेजी को अदबी इजहार का जरिया बनाने पर कादिर हो सकते हैं या हो सकते थे, और इसी कदर दस्तरस अपनी मादरी जबान पर भी रखते थे या रखते हैं, और इस तरह के तर्जमे करना उनमें से अक्सर के बस की बात ही नहीं होती थी। तरक्की पसंदों का एक हिस्सा जो बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंच सका उर्दू मुसन्निफीन का था। इसकी वजह यह थी कि उर्दू के तरक्की पसंद अदीब और तहरीक के उर्दू बोलने वाले मुंतजमीन दूसरों से ज्यादा काबिल थे, बल्कि खास तौर पर इस वजह से कि उर्दू बहसीयत मजमूई इलाकाई जबान नहीं थी, ना है, बल्कि मुसलमानों की और अक्सर बेशतर शहरी मुसलमानों की जबान थी और अब भी है, जो शिमाल मगरिब और बर्रे सगीर हिंदो पाक के वस्त के शहरों में आबाद रहने वाले लोगों की जबान थी और है। और उस जमाने में पंजाब के बेशतर मुसन्निफीन हिंदू, मुस्लिम और सिख भी उर्दू को अदबी इजहार के वसीले के तौर पर तरजीह देते थे। एक और मसला अदब को आवाम से करीब लाने के सिलसिले में पैदा हुआ। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की अक्सरियत अदबी जबान लिखने वालों की थी। वो ऐसे मौज़ूआत पर ऐसी रिवायात के साथ और ऐसी जबान में लिखते थे जिसे आम शहरी और देही गैर तालीम याफ्ता तबका समझने से कासिर था।